Good morning students. Today we are going to learn some important point, that is SQL command, and on this topic they will ask the queries, okay, like DML, DCL or TCL and DQL. Let's see the example of this. First we'll learn the syntax, then we see the example. So first is DDL, okay. So DDL means what? Your data definition language, okay. Data definition language means what? We are going to just create the structure of your table, okay. Structure means what? The field names, the type, what kind of table you want, what name of table you want, the fields what you want. So in that DDL commands we just create the structure of the table. Structure means what? The table name. Suppose you have to create the student table, okay. आपको अगर student table create करना है, so what you think first? The name of the table, then what kind of data you want. Suppose I want student name, roll number, address. So that particular thing is nothing but your structure of the table. So first we create the structure of the table. In that structure define the schema. Schema means what? The schema means the structure or basic behavior of the table. So we build the name and the fields of the table. For example, I want table like that, okay. So student, I want student table, and in that I want the fields, okay. So first field is roll number, second is name, third is your address, next is division, then after that the number, phone number, okay. So this is nothing but your fields, okay. Only fields we are creating here, okay. After that in DML command, that is data manipulation language, we insert the record in this table, okay. हम लोग उसके बाद टेबल के अंदर रिकॉर्ड क्या करने वाले हैं? इंसर्ट करने वाले. फर्स्ट हम लोग सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाएंगे यूजिंग दिस, दैट इज डेटा डेफिनेशन. डिफाइन करने वाले, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. हम लोग डेटा को क्या करने वाले हैं? सिर्फ डिफाइन करने वाले हैं. और यहाँ पे जो हम लोगों ने डेटा डिफाइन किया है, इसके अंदर डेटा क्या करने वाले हैं? इंसर्ट करने वाले. So suppose I want to create the table, okay. So table हमें create करना है, तो syntax for creating table is that create. So create is nothing but your keyword. So first write down create keyword, then after that table keyword is compulsory here. So create table and table name, suppose here student. So create table name, then after that in bracket we have to write the field's name and data type. So first field name is what? Roll number. So I write here roll number. So what kind of data the field is contained? That is roll number, that is integer type. 1 2 3 4, these are my roll numbers, okay. So roll number is your number data type, then after that in bracket size of data means what? यहाँ पे हम लोग कितनी size उसको allocate करने वाले हैं. So roll number, then data type, then size of that data, then comma के बाद second is your name. So write here name. The name means what? It contains the characters, okay. So for that SQL provides the varchar data type. Yes, as you all know that varchar data type. Then after that 10. Then after that again add address is there. Again the data type is what? varchar, then 10. up to n number of fields आप लोग क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो. सिर्फ आपको कॉमा देना है, देन उसके बाद आएगा आपका सेमीकोलन. Then here they created the person table, okay. So create table person, okay. So related to person, what kind of information is there? That is the number of the person, ID of the person, then last name of the person, then first name of the person, then address of the person, then city of the person, okay. So create
टेबल, पर्सन, इन ब्रैकेट जो भी मैंने बोला अभी कि मुझे आईडी चाहिए, मुझे लास्ट नेम चाहिए, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए, मुझे सिटी चाहिए. ओके, सो write the field name, after that write the data type, then after that in bracket write the size of the data. Okay, so here one example is there, write a command, and ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. राइट अ कमांड टू क्रिएट द टेबल. व्हाट दे आस्क, राइट क्या करना है, व्हाट कमांड टू व्हाट क्रिएट टेबल. क्या बोला है उन्होंने, टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट डेटा टाइप का. सो उसके लिए आपको कमांड्स लिखने हैं और दे प्रोवाइड दी फील्ड्स. ओके, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर. सो fields are provided to you, so only you have to write the command. So how you write the command, like that, create what, table, then student in bracket, first field is what, roll number, then roll number contains the number, so here write the data type, that is number in bracket 5. Then after that student name, so student name is there, then it contains the characters, so write the data type, that is character. Then after that branch, then branch is having again character, so write here varchar in bracket size. Then after that class, class also contain the character, so here write the varchar and 10. Then after that date of birth, मुझे क्या करनी है, स्टूडेंट की डेट लिखनी है, तो उसके लिए डेटा टाइप दिया है डेट नाम का, सो राइट डेटा टाइप, नो नीड टू राइट द साइज ऑफ डेट. ओके, then city again varchar, then contact number, then after that semicolon. Semicolon is compulsory to all the queries. Okay, every time you have to write the semicolon after end of each and every queries. So this is how we create the table. Now हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, हम लोगों ने अभी इसके अंदर कुछ भी डेटा इंसर्ट नहीं किया है. सो फर्स्ट क्रिएट द स्ट्रक्चर, मीन्स क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर. देन आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, अल्टर मीन्स व्हाट, अल्टर मीन्स व्हाट, जो मैंने अभी टेबल क्रिएट किया है उसको मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है. सो मॉडिफिकेशन मीन्स व्हाट, if I want to add one more column, okay, one more column means what, suppose here my last column is this, and I want to add one more column, that is the teacher name, okay, या फिर सब्जेक्ट नेम. सो दिस आई वॉन्ट टू एड, सो दिस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन, बिकॉज वी ऑलरेडी क्रिएटेड द स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट I want the one more field, that is the subject. Okay, so this is the modification, this is nothing but your alteration. Or second modification is what, suppose I want to modify the existing column. Existing column means what, suppose roll number is there, I want to modify this, means suppose I want to change the size, I want to change the name. Okay, so this is nothing but the modification. So this is the alter command. So syntax for that is alter table name. Okay, so first is add and second is your modify. Add means what, add one new column, and modify means what, modify the existing field. Okay, so alter table name, then after that add होगा तो write here add keyword, modify होगा तो write here modify keyword. Okay, so alter table name, then add, then in bracket what you have to write, the column name and the column definition. Column name means what, your name of the column. Suppose subject is my column name, and definition means what, the type of, the means subject is your varchar in bracket, that is size. So subject is this. Then one more way for altering command, that is modify. Only the keyword modify is there, means alter table, then modify table name, and then after that modify is there. So कैसे लिखोगे, alter क्या करना है मुझे, example alter table student details, alter tables student details. तो alter table student table name is there, alter table name is there. Only if you want to add new column, then write here add keyword. If you want to modify the existing column, then write here modify keyword. Okay, then first I want to add one
field, that is address, and after that the data type of that address, then 20. Then modify means what? The name of the field and then varchar 2. Suppose here the existing size is that is 10 and I want to modify the size. Okay, so modify means what? 20 करना है मुझे. So here I write the 20. So this is how we create the alter the existing table structure. Then after that, drop means what? Drop means what? This is my structure and I want to delete both the structure, means I want to delete the structure and records present in that. Then I use the drop command. So drop table name, drop table name. Okay, so drop table name, drop, then after that table, then table name means what kind of structure we have created. So here I created the student, तो यहाँ पे आएगा आपका टेबल का नाम, that is student. Drop table name student. Then after that, truncate means what? Suppose I want to delete rows, not structure. So drop command is used to delete the whole structure, means structure भी delete होगा, records भी delete होंगे. लेकिन suppose मुझे structure चाहिए वैसे कि वैसे ही, सिर्फ मुझे ये जो records मैंने insert किए ना इसको delete करना है, तो इसके लिए आएगा आपका truncate command. So truncate command, it is used to delete all the rows from the table and free the space. Okay, तो rows delete होंगे यहाँ से. So suppose I want to delete the rows from the column. Okay, not the structure. I want to delete these rows. So here I use the truncate command. So truncate, then again table and table name means what? Suppose I write here truncate table student and here I write drop table name. Drop table name means what? The whole structure is also deleted and record is also deleted using drop command. लेकिन मुझे क्या चाहिए? I only want delete the records. Okay, मुझे क्या करना है? सिर्फ records delete करना है, structure वैसे के वैसे ही चाहिए, तो I use the truncate command. Okay, so this is how we use the DDL command. and इसके ऊपर 2 questions आने वाले ही है, क्योंकि हम लोगों को पूछा जाएगा कि create करो टेबल या फिर drop करो, तो ये 2 questions तो आने ही वाले हैं. So here you clear the all things, that is how to create the table, how to delete the structure of the table. Okay, now अभी हम लोगों को next जो कि data manipulation language है उसके अंदर देखना है कि जो हम लोगों ने structure create किया है अभी उसके अंदर हम लोगों को data क्या करना है? insert करना है. और यही question मैंने prelim में भी पूछा था कि select command के मदद से data insert किया हुआ data क्या करो? show करो. तो पहले हम लोग DML देखेंगे, then हम लोग select command देखेंगे. आपको select command अभी तक समझ में नहीं आई, फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि DQL के अंदर ये सिलेक्ट कमांड है, इसके ऊपर 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने ही वाला है, मतलब क्वेरी आने ही वाले. तो उसके लिए आपको you have to clear the basic things about the select commands and DML command, that is insert, update, delete. Then we'll learn the grant and revoke command, क्योंकि grant and revoke command के ऊपर भी 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. Now next is with DML means data manipulation language. तो data definition में हम लोगों ने क्या किया? We only created the structure of the table. Now we are going to insert the data into that table. For that DML data manipulation language is used. So data manipulation के अंदर there is 3 commands, that is insert, update and delete. Let's see first one, that is insert. So here we created the structure. Now we are going to insert the first record into this student table. So syntax for that is insert. What we have to insert? Insert into. Okay, this is the keyword, insert into. Then after that table name. What is the table name? That is student. So insert into table name, that is student. Then values keyword is there. So don't forget the values keyword here. Okay, insert into what? Student, that is table name, values in bracket. अभी ये जो वैल्यूज है ये किसके साथ मैच करनी है आपको? जो आप लोगों ने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है ना, दिस इज
ओके ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, इसके साथ ये वैल्यूज क्या करनी है, मैच करनी है. सो फर्स्ट इज व्हाट, रोल नंबर. सो रोल नंबर मीन्स व्हाट, राइट हियर 1, देन कॉमा, आफ्टर दैट क्या है, नेम. Always write the names means character in single inverted comma. So name is what, Tejal, then comma. Third is what, your roll number, name, then address. Address is also your character, तो write here नासिक, and then after that semicolon. तो ये और ये आपको क्या करना है, मैच करना है वैल्यूज. अगर रोल नंबर पहला है तो आपको यहाँ पे इंटीजर ही नंबर डालना है. वैरक्यार है तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर ही डालना है. यहाँ पे थर्ड वैरक्यार है तो यहाँ पे भी कैरेक्टर ही डालना है. और जहाँ जहाँ पे वैरक्यार है वहाँ पे आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालना है. डोंट फॉरगेट. ओके नंबर है तो प्लेन लिखो, और जो भी कैरेक्टर आप लिख रहे हो, जो भी नाम लिख रहे हो, वो राइट इट इनटू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. ओके दिस इज हाउ वी इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल. ओके सो नेक्स्ट इज अपडेट. ओके अपडेट मीन्स व्हाट, सपोज ये मेरे फील्ड्स है और यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, रोल नंबर, नेम ABC, थर्ड इज व्हाट, एड्रेस नासिक, एंड फोर्थ इज व्हाट, डिवीजन C सपोज. ओके सो ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है, एंड यहाँ पे फील्ड्स नेम है, दैट इज रोल नंबर, नेम. ओके अभी मुझे क्या करना है, अपडेट करना, मीन्स चेंजेस करने हैं कुछ इसमें. जो रोल नंबर 1 है उसका नाम मुझे चेंज करना है, या फिर जो रोल नंबर 1 है उसकी डिवीजन मुझे चेंज करनी है. सो फॉर दैट अपडेट कमांड इज यूज. सो अपडेशन कैसे करोगे, सो syntax for that is update. Write here update keyword. Then after that टेबल नेम, किसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो स्टूडेंट इज माय टेबल नेम, तो टेबल का नाम लिखो स्टूडेंट. अपडेट स्टूडेंट, then after that set keyword is there. Okay don't forget to write set keyword. Update टेबल नेम set keyword. अभी मैंने क्या बोला है, what I just tell you, I want to change the name of the student that is having roll number 1. मुझे ये जो रोल नंबर 1 है इसका जो नाम है ABC, उसको चेंज करके मुझे क्या करना है, तेजल करना है. तो मैंने कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि मुझे क्या करना है, ये नाम चेंज करना है, लेकिन किसका करना है, रोल नंबर 1 जो है उसका मुझे क्या करना है, नाम चेंज करना है. सो क्या लिखना है आपको, अपडेट स्टूडेंट सेट. क्या सेट करनी है, तो पहले तो सेट के बाद आपको क्या मॉडिफिकेशन करने हैं वो लिखने हैं. तो सेट के बाद मुझे मॉडिफिकेशन क्या करना है, जो नेम है ना उसको मुझे क्या करना है, चेंज करना है. तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन, मतलब क्या मुझे मॉडिफाई करना है. तो अपडेट स्टूडेंट सेट, क्या करना है सेट, मुझे नेम सेट करना है तेजल, और किसका करना है, जिसका रोल नंबर 1 है. तो ये हो गया मेरा कंडीशन कि रोल नंबर 1 का नाम मुझे चेंज करना है. तो मॉडिफिकेशन हो गया, अपडेट स्टूडेंट, देन सेट नेम इज इक्वल्स टू व्हाट, तेजल, देन वेयर क्लॉज. वेयर मीन्स व्हाट, ये क्लॉज है, इसके बाद हम लोग कंडीशन लिखेंगे. तो कंडीशन क्या है, रोल नंबर, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1. ओके तो यहाँ पे लिखी मैंने कंडीशन कि मुझे जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम तेजल चेंज करना है. सो दिस इज हाउ वी यूज द अपडेट कमांड, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू इन योर कमांड्स, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क फॉर 6 marks. ओके update the marks of the student to this. ओके नेक्स्ट इज डिलीट. डिलीट तो आपको पता ही है, सिंपल है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. ओके अगर मुझे पर्टिकुलर एक सिंगल रो मुझे डिलीट करनी है, सपोज मुझे जो रोल नंबर 1 है उसको ही डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, डिलीट फ्रॉम, किस में से करना है, स्टूडेंट में से करना है. ओके तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, मुझे रोल नंबर 1 जो है उसका डेटा क्या करना है, डिलीट करना है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 1, मतलब जिसका रोल नंबर 1 है उसका जो रिकॉर्ड है वो पूरा क्या करो, डिलीट करो. दिस इज हाउ वी यूज द DML कमांड, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कमांड इज दैट इज DQL, मीन्स सिलेक्ट कमांड. ओके अभी सिलेक्ट कमांड
कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसका सिंटैक्स अगर आपको पता चल गया तो आपको इजी से क्वेरीज लिख पाओगे. सो दिस इज द सेम एज द प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा एंड इट इज यूज टू सिलेक्ट द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन. तो यहाँ पे कंडीशन आने वाली है और वेयर क्लॉज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले. तो उसके लिए सिंटैक्स है सिलेक्ट, जो भी सिलेक्ट करना है वो आपको उसके बाद लिखना. मतलब सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है आपको, पूरा के पूरा रिकॉर्ड करना है तो स्टार लिखो. इंस्टेड ऑफ दैट अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर सिलेक्ट करना है, मतलब रोल नंबर जो फील्ड है वही मुझे डिस्प्ले करनी है ये वाली, तो यहाँ पे उस फील्ड का नाम लिखो. मतलब यहाँ पे आएगा आपका रोल नंबर, मीन्स वही एक फील्ड आपकी डिस्प्ले होने वाली. सिलेक्ट मीन्स व्हाट, डिस्प्ले कमांड. ओके, सो सिलेक्ट स्टार लिखा तो पूरे के पूरे फील्ड शो होंगे. अगर पर्टिकुलर रोल नंबर या फिर नेम या फिर सब्जेक्ट नेम, ये जो फील्ड्स लिखी तो वो जो पर्टिकुलर फील्ड है वो क्या होने वाली है, शो होने वाली है. तो यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट व्हाट स्टार, या फिर जो भी फील्ड्स का नाम है वो, दैट इज सिलेक्ट रोल नंबर, दिस इज माई फील्ड नेम. ओके, आइदर स्टार लिखो आइदर फील्ड का नाम लिखो. सिलेक्ट क्या करो, रोल नंबर सिलेक्ट करो. फ्रॉम किस टेबल में से करो, स्टूडेंट नेम टेबल में से करो. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अगर ऐसे लिखा तो जो भी स्टूडेंट है उसके अंदर से सारे रिकॉर्ड आपके क्या होने वाले, शो होने वाले. लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, क्या लिखा मैंने, कंडीशन क्या दी है कि सिलेक्ट करो रोल नंबर फील्ड्स को फ्रॉम स्टूडेंट में से करो. वेयर कंडीशन, अभी वेयर के बाद क्या आने वाली, आपकी कंडीशन आने वाली. वेयर कंडीशन मैंने लिखी, वेयर डिवीजन इज इक्वल्स टू सी. मतलब क्या होगा कि ये जो मैंने एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं उसमें से उतने ही रोल नंबर सिलेक्ट होने वाले, सिर्फ रोल नंबर सिलेक्ट होने वाले हैं जो कि सी डिवीजन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. सो सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर द कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो आपको वेयर के बाद में ही लिखनी है. और यहाँ पे जो जो आपको शो करना है वो लिखना है. तो यहाँ पे क्या देखना है आपको वो, और उसके अंदर से आपको क्या कंडीशन है, मतलब कौन सा रिकॉर्ड देखना है वो. ओके, ये क्या देखना है और यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड. तो दिस इज योर कंडीशन एंड दिस इज योर टेबल नेम. ओके, दिस इज हाउ वी यूज द DQL कमांड. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज DCL मीन्स व्हाट, कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा को हम लोगों को प्राइवेसी देनी है, डेटा कंट्रोल करना है. तो उसके लिए पहले तो आएगा आपका ग्रांट कमांड, दूसरा आएगा आपका रिवोक कमांड. सो दे आस्क फॉर क्रिएट द यूजर, ग्रांट द परमिशन एंड रिवोक बैक द परमिशन. सो फर्स्ट वी लर्न द हाउ टू क्रिएट द यूजर. सो क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट यूजर. अभी मुझे क्या करना है, यूजर क्रिएट करना है. सो हाउ टू क्रिएट द यूजर, सो क्रिएट यूजर व्हाट, क्रिएट यूजर, दिस इज यूर कीवर्ड. हम लोग कैसे लिखते हैं क्रिएट टेबल, वैसे हम लोग लिखेंगे क्रिएट यूजर. अभी मुझे तेजल नाम का यूजर क्या करना है, क्रिएट करना है. सो क्रिएट यूजर तेजल, मैंने क्या किया है, यूजर को क्रिएट किया है. लेकिन मुझे अभी हम लोग लॉग इन करते तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आता है, मतलब ये मेरा यूजर नेम, ये है मेरा पासवर्ड. तो हम लोगों ने सिर्फ यूजर क्रिएट किया है. सो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो यहाँ पे आएगा आपका आइडेंटिफाई बाय. ओके, क्रिएट क्या करो, यूजर क्रिएट करो तेजल नाम का, उसको आइडेंटिफाई करो. अभी मुझे यहाँ पे पासवर्ड लिखना है 1 2 3, मतलब ये मेरा यूजर नेम और ये मेरा पासवर्ड, देन आफ्टर दैट सेमीकोलन. दिस इज हाउ वी क्रिएट द यूजर. अभी हम लोग यूजर क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज क्रिएट यूजर तेजल आइडेंटिफाइड बाय 1 2 3. तो दिस इज हाउ वी क्रिएट. अभी मेरा यूजर क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है. अभी मुझे ये जो यूजर मैंने क्रिएट किया है तेजल नाम का, उसको मुझे परमिशंस देनी है कि वो मेरे टेबल के अंदर क्या क्या कर सकता है, मतलब वो मेरे टेबल में मॉडिफिकेशन कर सकता है क्या नहीं कर सकता. जो भी परमिशन मुझे देनी है वो हम लोग यहाँ पे देने वाले. सो तेजल, तो उसके लिए है आपको ग्रांट. ओके, सो लिखो ग्रांट कीवर्ड. ओके, देन यहाँ पे आपकी प्रिविलेजेस लिस्ट आने वाली. लिस्ट मीन्स व्हाट, कौन से प्रिविलेजेस आपको वहाँ पे देने हैं. ओके, अगर उन्होंने मेंशन किया है कि ग्रांट दी अपडेट डिलीट एंड ड्रॉप परमिशन या फिर अपडेट सिलेक्ट परमिशन, तो यहाँ पे उस परमिशन का नाम लिखना है, प्रिविलेजेस की लिस्ट लिखनी है. तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रांट
सिलेक्ट, मुझे सिर्फ सिलेक्ट की परमिशन देनी है, या फिर मुझे अपडेट की भी परमिशन देनी है, तो कॉमा करके जो भी सिंटैक्स, जो भी कमांड्स है उसके नाम लिखो, अपडेट, सिलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट, ओके। सो कॉमा करके लिखो। अगर मुझे सारी परमिशन देनी है, वो जो यूजर है तेजल नाम का, वो मेरे डेटा को देख भी सकता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, कोई भी सब कुछ कर सकता है, तो उसके लिए ऑल लिखना है आपको, ग्रांट ऑल, ओके। तो ग्रांट सिलेक्ट अपडेट ऑन। अभी ऑन के बाद क्या करना है आपको, ऑन के बाद क्या करना है आपको, किसके ऊपर देना है, तो हम लोगों ने कौन सा टेबल क्रिएट किया था, स्टूडेंट नाम का, ओके। सो ग्रांट क्या करो, ये जो परमिशन है ऑन स्टूडेंट टेबल के ऊपर दो, एंड टू किसको देना है, तेजल को देना है, ओके। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं ना, टू तेजल, ओके, तो मुझे तेजल को देना है, क्या देना है, परमिशंस देनी है, कौन सी, तो ये वाली परमिशन। तो ये क्वेश्चन आपको आने ही वाला है, कैसे करोगे, ग्रांट सिलेक्ट अपडेट ऑन, ऑन कीवर्ड लिखना है, या आप लोग भूल जाते हो, देन टेबल का नाम भी भूल जाते हो, टू तेजल, ओके। तो ग्रांट करो, परमिशन के नाम लिखो, ऑन किस टेबल के ऊपर देना है, टू किसको देना है, ओके। दिस इज हाउ वी यूज द ग्रांट कमांड, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ग्रांट ऑल ऑन टेबल नेम टू ABC। सेम वैसे ग्रांट सिलेक्ट अपडेट, एक एक देना है तो एक भी दे सकते हो कॉमा करके, सिलेक्ट अपडेट ऑन एम्प्लॉय टू ABC। तो एम्प्लॉय इज योर टेबल नेम, हियर एम्प्लॉय इज योर टेबल नेम एंड ABC इज योर यूजर नेम। दिस इज हाउ वी गिव दी परमिशन। अभी मुझे जो मैंने परमिशन दी है उसको नहीं देना है, उसको क्या करना है, रिवोक करना है। रिवोक मीन्स व्हाट, कैंसिल दी परमिशन, जो मैंने दी हुई परमिशन है उसको कैंसिल करना है। तो मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पे, रिवोक, क्या क्या परमिशन दी थी मैंने, सिलेक्ट की परमिशन दी थी, देन अपडेट की परमिशन दी थी, ऑन किस टेबल के ऊपर दी थी, स्टूडेंट, टू किसको दिया था, अभी मुझे लेनी है, फ्रॉम लेना, यहाँ पे आएगा आपका फ्रॉम तेजल, अगर देनी है तो टू तेजल और लेनी है तो फ्रॉम तेजल। दिस इज हाउ वी यूज द ग्रांट कमांड एंड रिवोक कमांड एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क फॉर 6 मार्क्स, ओके। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आया है, ओके। यहाँ पे देखो, क्रिएट यूजर राहुल, ओके। फाइन, लास्ट क्वेश्चन पेपर में ये था कि क्रिएट यूजर राहुल, ओके। तो कैसे क्रिएट करोगे, क्रिएट यूजर क्रिएट करना है, राहुल क्रिएट करना है, आइडेंटिफाई किस, जो भी पासवर्ड आपको देना है वो यहाँ पे पासवर्ड दे दो। और यहाँ पे आप लोगों ने, अगर उन्होंने डेटा एज्यूम नहीं किया है तो आपको एज्यूम करना है, ओके। एज्यूम कैसे करोगे कि एज्यूमिंग द टेबल एम्प्लॉय फॉर ग्रांटिंग द परमिशन टू द यूजर, मुझे यूजर को परमिशन देनी है फॉर किसके, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ड्रॉप, ये सारी परमिशन मुझे देनी है, किसको देनी है, राहुल को देनी है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी, ग्रांट देनी है, मुझे क्या करनी है, परमिशन देनी है, ओके। तो ग्रांट द सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑन द एम्प्लॉय टू द राहुल। सो फॉर क्रिएट एंड ड्रॉप प्रिविलेज वी आर using the privileges, okay, not specifying to any object such a table। मतलब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ प्रिविलेज कि ऐसे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये टेबल है, तो आपको उसको अज्यूम करना होगा कि मुझे ये परमिशन देनी है इस टेबल के ऊपर। तो टेबल तो यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, तो टेबल को आपको क्या करना है, अज्यूम करना है कि ये मेरा टेबल है, ओके। सो एज्यूमिंग द टेबल एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आपको वहां पे मेंशन करना है, सिर्फ लिख के मत आओ कि ये ग्रांट, तो उनको वहां पे बताओ कि ये जो एम्प्लॉय है ये मेरा एज्यूम किया हुआ टेबल है, ओके। अभी मैं उसके ऊपर परमिशन देने वाली हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग, क्या करना है आपको, ग्रांट, देन उसके बाद एम्प्लॉय इज माई टेबल नेम, ओके। एम्प्लॉय के बाद मुझे क्या करना है, सॉरी, ग्रांट, ओके। ग्रांट के बाद मुझे क्या करना है, क्या बोला है उन्होंने, ग्रांट करने को क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो यहाँ पे लिखो क्रिएट, अपडेट, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, ड्रॉप, जो भी कमांड्स उन्होंने दिए वो। तो ग्रांट करो ये सारी कमांड ऑन किस टेबल के ऊपर जो आप लोगों ने एज्यूम किया है, दैट इज एम्प्लॉय, वो लिखो, एंड टू किसको देनी है आपको, राहुल को देनी है, ओके। एज्यूम करो और लिखो, अगर एज्यूम नहीं किया तो ये वाली कमांड आपको लिखनी है कि ग्रांट कनेक्ट
कॉमा रिसोर्सेस DBA टू राहुल मीन्स व्हाट, ये वो खुद ही एज्यूम करेगा कि सारी जो उसके अंदर जो भी टेबल प्रेजेंट है वो उसको सारी परमिशन क्या करने वाला है, देने वाला है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक डेटा या फिर एक टेबल एज्यूम करना है दैट इज एम्प्लॉय स्टूडेंट, और उसको आपको परमिशन देनी है। देन अभी मैंने थर्ड क्या है, रिवोक। ओनली क्या करना है आपको, रिवोक बैक करनी है सिलेक्ट परमिशन। तो यहाँ पे पूरी की पूरी नहीं करनी रिवोक बैक, सिर्फ मुझे जो सिलेक्ट मैंने दी थी ना उसको कैंसिल करना है। तो मैं लिखूंगी रिवोक, क्या करना है आपको, सिलेक्ट ऑन, टेबल का नाम क्या है मेरा एम्प्लॉय, एंड फ्रॉम किससे करना है, राहुल से करना है। तो देना है तो टू राहुल, लेना है तो फ्रॉम राहुल। दिस इज हाउ वी यूज द ग्रांट एंड रिवोक कमांड। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक टेबल दिया है, कंसिडर द टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पे नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट, एज, प्लेस, फोन, बर्थ डेट। ओके, अभी क्वेरीज लिखनी, ये सारा डेटा उन्होंने एज्यूम करके दिया है। अभी मुझे क्वेरीज लिखनी, तो पहली क्वेरी क्या है यहाँ पे, टू लिस्ट द स्टूडेंट। टू लिस्ट मीन्स व्हाट, टू लिस्ट मीन्स व्हाट, स्टूडेंट की लिस्ट करना है। तो लिस्ट मीन्स व्हाट, सिलेक्ट कमांड ही आने वाली है। और यहाँ पे कंडीशन दी है कि जिसका प्लेस पुणे और जलगांव है, उस वो जो स्टूडेंट है उसकी लिस्ट क्या करो, शो करो। तो कैसे लिखोगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम, किस में से, स्टूडेंट। ओके, तो नेम सिलेक्ट करो, तो उन्होंने क्या बोला है कि टू लिस्ट द स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट का नाम, तो नेम इज माय फील्ड नेम, तो सिलेक्ट नेम करो, फ्रॉम स्टूडेंट में से करो। वेयर क्या बोला है कि वेयर प्लेस इज इक्वल्स टू पुणे और प्लेस इज इक्वल्स टू जलगांव। ओके, मीन्स जिसका प्लेस पुणे है और ऑपरेटर देन प्लेस इज इक्वल्स टू जलगांव। वैसे भी कर सकते हो या फिर इन ब्रैकेट भी लिख सकते हो कि वेयर प्लेस इन कीवर्ड लिखना है और पुणे कॉमा जलगांव। तो बेटर वे आप लोग ऊपर का करो कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्लेस इज इक्वल्स टू पुणे और प्लेस इज इक्वल्स टू जलगांव। नेक्स्ट इज व्हाट, क्या बोला है, टू लिस्ट द स्टूडेंट्स हैविंग सेम डिपार्टमेंट एज दैट रचना। ओके, मीन्स व्हाट, आपको क्या करना है कि जो भी रचना नाम की जो भी स्टूडेंट है उसका डिपार्टमेंट क्या करना है, शो करना है कि वो जो है रचना वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती। तो यहाँ पे लिखना है आपको सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू। ओके, तो डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या करना है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल्स टू रचना। तो जो भी सिलेक्ट कमांड है ना वो यहाँ पे लिखना है कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, जो भी रचना नाम की स्टूडेंट है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है वो क्या करना है, शो करना है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट करो, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से करो वेयर नेम इज इक्वल्स टू रचना। तो रचना का जो डिपार्टमेंट है वो क्या होने वाला है, आपका शो होने वाला है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, टू चेंज, चेंज मीन्स व्हाट, अपडेशन करना है। तो अपडेशन क्या बोला है कि टू चेंज द मार्क्स ऑफ राहुल, राहुल के मार्क्स चेंज करने हैं फ्रॉम 81 टू 96। तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन और ये हो गई आपकी कंडीशन। ये मॉडिफिकेशन है, ये कंडीशन है। तो मॉडिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, पहले सेट के बाद लिखते हैं, एंड कंडीशन हम लोग वेयर क्लॉज के बाद लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे, अपडेट करो स्टूडेंट, सेट क्या करना है आपको, मार्क्स सेट करने हैं 96। ओके, मार्क्स क्या करना है 96, वेयर कंडीशन क्या है, नेम इज इक्वल्स टू राहुल, मतलब जिसका नाम राहुल है उसके मार्क्स क्या करना है, आपको अपडेट करना है। देन टू लिस्ट द स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स फ्रॉम द कंप्यूटर डिपार्टमेंट, जो भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है ओके उसके नाम एंड मार्क्स क्या करने हैं, शो करने। तो क्या लिखना है आपको, सिलेक्ट क्या करना है आपको, नेम एंड मार्क्स शो करने, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से करना है, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर, मतलब जो भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करता है उसके नेम एंड मार्क्स क्या करो, शो करो। देन सिलेक्ट क्या करो, टू लिस्ट द स्टूडेंट नेम हु हैव मार्क लेस देन 40, जिसके मार्क्स 40 से कम है उसके क्या करने हैं, नेम शो करने। तो यहाँ पे सिलेक्ट नेम शो करने, फ्रॉम स्टूडेंट में से करने। तो यहाँ पे ये क्या है आपका सिलेक्ट है, ये क्या है आपके क्या शो करना है, फ्रॉम किस टेबल में से करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो भी आपकी फील्ड्स नेम है वो आने वाली है, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम आने वाला है और उसके बाद वेयर क्लॉज आने वाला है और वेयर के बाद आपकी कंडीशन आने वाली, वेयर मार्क्स इज लेस देन 40, मतलब जिसके मार्क्स लेस देन 40 उसके नेम और शो करो। नेक्स्ट क्या कहे, टू लिस्ट द स्टूडेंट हु आर नॉट फ्रॉम मुंबई, जो भी
मुंबई से बिलोंग नहीं करते उसकी क्या करना है आपको, लिस्ट करनी। तो सिलेक्ट स्टार मतलब सारे ही करने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्लेस इज नॉट इक्वल्स टू मुंबई, मतलब जिसकी प्लेस मुंबई नहीं है उसको क्या करना है आपको, डिटेल्स शो करने। दिस इज हाउ वी यूज द सिलेक्ट कमांड। और ऐसे ही क्वेरीज आपको पूछने वाले हैं।